भारत धर्म की पवित्र भूमि है। हर युग में भारत में महान गुरु और रहस्यवादी, दृष्टा और साधक हुए हैं, जिन्होंने मानवता को अंदर शांति और बाहर सद्भाव खोजने का मार्ग दिखाया है। दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भगवान बुद्ध का इन पथ प्रदर्शकों में अद्वितीय स्थान है। The International Buddhist Confederation, or IBC in short, must be commended for organizing this two-way conference. The themes chosen for the summit, the role of Buddha Dhamma in strengthening Asia, is age after age, it is timely. Over these 2 days, you monks, scholars, and practitioners will engage in dialogues and discussions about the Buddha Dhamma and its role in contemporary society. India is the blessed land of Dharma. Here, in every age, there have been great masters and mystics, seers and seekers who have shown humankind a way to find peace inside and harmony outside. The Buddha holds a unique place among these pathfinders. The enlightenment of Siddhartha Gautama under the Bodhi tree in Buddha Gaya is an event unparalleled in history. राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा बुद्ध ने न केवल मानव मन के कामकाज के बारे में अतुलनीय समृद्ध अंतर्दृष्टि प्राप्त की, बल्कि उन्होंने बहुजन सखाय बहुजन हिताय की भावना से सभी लोगों के साथ इसे साझा किया। He not only attended incomparably rich insights into the working of the human mind, he also chose to share them with all people in the spirit of Bahujana Sukhayo, Bahujana Hitayo Cho, for the welfare of the masses. For 45 years after his enlightenment, he went from place to place preaching the Dharma. He took his message to a variety of audiences, kings and artisans, men and women, monks and lay people. To spiritually involved people, he explained the causes and conditions that shape human experience. To ordinary people, he taught how to lead a moral life. राष्ट्रपति ने कहा, बुद्ध की शिक्षाओं का संरक्षण हम सभी के लिए महान सामूहिक प्रयास रहा है। उन्होंने कहा कि बौद्ध संघ के बारे में सच है कि इसका केंद्र हर जगह है और परिधि कहीं नहीं है। The spread of Dhamma over all expanding geographical area created a community, a larger Sangha. In essence, India, the land of the Buddha's enlightenment, is at its center. But what is said about God is also true about this larger Buddhist Sangha. That its center is in everywhere and circumference nowhere. This is all the more true because apart from Southern Buddhism and Northern Buddhism, it has also been spreading in the only remaining direction in the last 2 centuries, and it has come to known as Western Buddhism. राष्ट्रपति ने कहा कि आज जब दुनिया कई मोर्चों पर अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है, न केवल संघर्ष बल्कि जलवायु संकट भी है, ऐसे में बौद्ध समुदाय के पास मानव जाति को देने के लिए बहुत कुछ है। When the world today is facing an existential crisis on many fronts, not only strife but also the climate crisis, your large community has much to offer
to humankind. The various schools of Buddhism show the world how to counter narrow sectarianism. Their central message remains focused on peace and non-violence. If one word can capture the Buddha Dhamma, it has to be Karuna, or passion, which is what the world needs today. As the theme of the summit has captured it well, we need to discuss the role of Buddha Dhamma in strengthening Asia. Indeed, we need to expand the discussion to see how Buddha Dharma can bring peace, real peace, to Asia and to the world, a peace free from not only physical violence, but also from all forms of greed and hatred. The two mental forces at the root of all our miseries, according to the Buddha. दिल्ली में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का विषय है एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से बौद्ध धर्म को सम्मानित करते हुए 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। विविध संस्कृतियों और धार्मिक मान्यताओं के एक जीवंत केंद्र के रूप में प्रसिद्ध भारत लंबे समय से बौद्ध धर्म का गढ़ रहा है। यह प्राचीन परंपरा न केवल इसकी सीमाओं के भीतर विकसित हुई, बल्कि विभिन्न देशों में भी फैली। इस समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने के लिए केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय
दिशा में सार्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं। म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड समेत कई देशों में पाली भाषा में टीकाएं संकलित की जा रही है। भारत में भी हम ऐसे प्रयासों को तेज कर रहे हैं। पारंपरिक तरीकों के साथ साथ हम पाली को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल आर्काइव्स और ऐप्स के जरिए भी प्रमोट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार ने करुणा, जागरूकता और परस्पर जुड़ाव के मूल्यों को बढ़ावा देते हुए पूरे एशिया और उसके बाहर विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को गहराई से आकार दिया है। बौद्ध धर्म के जन्म स्थान के रूप में भारत इस समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने और उसे बढ़ावा देने वाली नीतियों के साथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके भारत न केवल बुद्ध धम्म के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहा है, बल्कि समकालीन समाज में बौद्ध धर्म के विकास और प्रासंगिकता को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में खुद को एक अगुवा के रूप में स्थापित कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहें। बुद्धं शरणं गच्छ। कोई भी अभिलेखीय या पांडुलिपि साक्ष्य नहीं बचा है। खोजे गए पाली के सबसे पुराने नमूने 5वीं से 8वीं शताब्दी के शिलालेख हैं, जो मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से मध्य सियाम और निचले बर्मा में स्थित है। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में ही उपदेश दिए हैं। अशोक के समय में इसकी बहुत उन्नति हुई। उस समय इसका प्रचार भी विभिन्न बाह्य देशों में हुआ। अशोक के समय सभी लेख पाली भाषा में ही लिखे गए थे। यह कई देशों जैसे श्रीलंका, बर्मा आदि देशों की धर्म भाषा के रूप में सम्मानित हुई। इसका प्रमाण सम्राट अशोक के शिलालेखों और स्तंभों से प्राप्त होता है। बुद्ध काल में पाली भाषा भारत के जनमानस की भाषा थी। तथागत बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में ही दिए हैं। पाली भाषा का उद्भव गौतम बुद्ध से लगभग 300 वर्ष पहले ही हो चुका था, किंतु उसके प्रारंभिक साहित्य का पता ही नहीं लगता। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य प्रारंभिक अवस्था में कथा, गीत, पहेली आदि के रूप में रहता है और उसकी रूपरेखा तब तक लोगों को ज़बान याद रहती है जब तक कि वह लेखबद्ध या ग्रंथारूढ़ न हो जाए। इस काल में पाली भाषा की जैसे उत्पत्ति हुई वैसे ही विकास भी हुआ। प्रारंभ से लेकर लगभग 300 वर्ष तक पाली भाषा जनसाधारण के बोलचाल की भाषा रही, किंतु जिस समय भगवान बुद्ध ने इसे अपने उपदेश के लिए चुना और इसी भाषा में उपदेश देना शुरू किया, तब यह थोड़े ही दिनों में शिक्षित समुदाय की भाषा होने के साथ साथ राजभाषा भी बन गई। पाली शब्द का सबसे पहला व्यापक प्रयोग हमें आचार्य बुद्ध घोष की अट्ट कथाओं और उनके विशुद्धि मग्ग में मिलता है। वहाँ यह बात अपने उत्तरकालीन भाषा संबंधी अर्थ से मुक्त है। आचार्य बुद्ध घोष ने 2 अर्थों में इसका प्रयोग किया है। पाली भाषा की जड़ें प्राचीन भारत में बौद्ध और जैन परंपराओं से जुड़ी हैं। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए, जिससे यह भाषा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का अहम माध्यम बन गई। बौद्ध ग्रंथों, विशेषकर त्रिपिटक को पाली भाषा में संरक्षित किया गया, जो बुद्ध के उपदेशों और धार्मिक सिद्धांतों का संग्रह है। पाली का सबसे पहला उल्लेख बुद्ध घोष की टीकाओं में मिलता है, जबकि इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं।
कुछ इसे मगधी भाषा से जुड़ा मानते हैं, जबकि अन्य इसे आम जन की भाषा बताते हैं। पाली का अध्ययन प्राचीन भारत के इतिहास, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के साथ पाली का प्रचार भारत से बाहर भी हुआ और आज यह भाषा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान, तिब्बत और अन्य बौद्ध बहुल देशों में व्यापक रूप से पढ़ाई जाती है। पाली भाषा की महत्ता उसके समृद्ध साहित्यिक योगदान और प्राचीन भारतीय ज्ञान को संरक्षित करने में निहित है। पाली भाषा में रचित साहित्य बौद्ध धर्म की धार्मिक धरोहर को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक है, जो 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड विनय पिटक भिक्षुओं के लिए धार्मिक नियमों और नैतिक आचरण को तय करता है। दूसरा खंड सुत्त पिटक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जबकि तीसरा खंड अभिधम्म पिटक मन और ज्ञान के गहन विश्लेषण से संबंधित है। पाली साहित्य में जातक कथाएं भी शामिल हैं, जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों को प्रस्तुत करती है। ये कहानियां भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं और उनमें नैतिकता, धर्म और समाज के मूलभूत सिद्धांतों को वर्णित किया गया है। पाली भाषा के माध्यम से बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जन जन तक पहुंची और इससे जुड़ा साहित्य भारत के प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक विचारों को आज भी संजोए हुए है। पाली भाषा संपूर्ण मध्य देश की साहित्यिक भाषा थी। उस पर कोसल, मगध, काशी, पांचाल, करु, वत्स, सुरसेन, शाक्य, कोलिय, मल्ल, वज्जी, विदेह, अंग आदि जनपदों और गणों की प्रादेशिक बोलियों का प्रभाव था। अतः हम कह सकते हैं कि पाली भाषा मध्य देश की भाषा थी और मध्य देश ही उसका उद्गम स्थान था। वैसे भी भाषा किसी खास नगर या देश की वस्तु नहीं होती, वह तो समुदाय, जन एवं देश से अपना संबंध रखती है। पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से इस प्राचीन भाषा के पुनरुत्थान के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी। यह पाली के समृद्ध साहित्यिक योगदान को संरक्षित करने और इसके अध्ययन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके तहत सरकार विभिन्न योजनाओं को लागू कर इस भाषा के शोध, अध्ययन और प्रचार को प्रोत्साहित करेगी। इसके माध्यम से पाली भाषा के महत्व को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पुनर्स्थापित किया जाएगा। संघं शरणं गच्छामि।